SA 250, that is Standards on Auditing 250. What is SA 250? The considerations of laws and regulation. The consideration of laws and regulation in an audit of financial statements. Right? What the consideration of laws and regulations means, बात किसकी हो रही है यहाँ? Laws and regulations की. याद रखना किसकी बात हो रही है बेटा इधर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? देखो, this one, laws and regulations. याद रखना, this is very important. Laws and regulation is very important. So SA 250 talks about what? Laws and regulation means the consideration in what? Laws and regulations in an audit of financial statement. In an audit of what? Audit of financial statements. Okay, so laws and regulation is very important, जो कि देखो ब्रैकेट में पुट कर दिया मैंने, ब्रैकेट में शो किया है. So सबसे पहली बात तो ये जो एसे है, एसे 250 का इफेक्टिव डेट क्या बताया मैंने? इफेक्टिव डेट इज व्हाट? 1st April 2009. Remember, effective date is what beta? 1st April 2009. Means this essay is effective for audit of financial statements for periods beginning on or after 1st April 2009. ठीक है क्या बेटा? This essay is effective for audit of financial statements for period beginning on or after 1st April 2009. Means effective date is what? Effective date for this essay, that is essay 250. Essay 250, the consideration of laws and regulation in an audit of financial statements. उसका effective date है बेटा 1st April 2009. Okay, clear? So क्या क्या points अपने को देखना है वो भी देखा आपने. First we have to see, means essay 250 covers the following points. First one, scope. Second one, effect of laws and regulations. Third one, responsibility of management for compliance with laws and regulations. Then fourth one, responsibility of the auditor. Fifth one, objectives. And last, we have to see requirements. Okay, so chalo, step by step we will going to see it. Right, first point, that is scope. क्या दिया बेटा? First point, what बेटा? Scope. अब देखो scope में क्या बोल रहा है? What is given in this point? Scope means the auditor responsibility to consider laws and regulations. What scope क्या है इसका? 250 का scope क्या है? The auditor responsibility to consider laws and regulations while performing an audit of financial statements. When performing an audit of financial statements, so auditor का responsibility क्या है? उसको सारे laws and regulations consider करने पड़ेंगे. Common सी बात है ना यार, जो भी laws and regulations है वो उसको consider करना ही पड़ेगा. So the auditor responsibility to consider laws and regulations when performing an audit of financial statements. Remember, right? अभी देखो एक नीचे पॉइंट दिया मैंने. This essay does not apply to other assurance engagement in which the auditor is specifically engaged to test and report separately on compliance with specific laws or regulations. मतलब ये ऐसे किसको अप्लाई नहीं होगा? किसको अप्लाई नहीं होता है? This essay does not apply to other assurance engagement. कोई other assurance engagement होगा जिसमें auditor is specifically engaged है. Auditor specifically engaged हुआ है to test and report separately, on compliance with specific laws and regulations. तो उसके लिए ये ऐसे अप्लाई नहीं होगा. जिसके लिए ऑडिटर को स्पेसिफिकली एंगेज किया गया है टू टेस्ट एंड रिपोर्ट सेपरेटली विथ व्हाट स्पेसिफिक लॉज एंड रेगुलेशंस, तो वो अलग केस हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा. ठीक है, बाकी सबके लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंसिडर लॉज एंड रेगुलेशंस when performing an audit of financial statements. So this is what scope. What scope? Second point is what effects of laws and regulations. What effect of laws and regulations? अभी जो laws and regulations है, जो भी consideration of laws and regulations है in an audit of financial statement, सबसे पहली बात तो वो legal and regulatory framework देगा आपको. उस framework के हिसाब से आपको सब कुछ करना है, follow करना है. उस framework का direct इफेक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, नॉर्मल सी बात है.
जो भी फ्रेमवर्क है, लॉज एंड रेगुलेशंस है, उसका पूरा डायरेक्ट इफेक्ट होगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन दैट दे डिटरमाइन द रिपोर्टेड अमाउंट्स। रिपोर्टेड अमाउंट्स क्या है, डिस्क्लोजर्स कैसा होगा, डिस्क्लोजर कैसे करना है इन एन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो जो भी कंसिडरेशंस है ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस का इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, रिमेंबर इट, they have what direct regulations, mean direct effect होगा। The provision of some laws and regulations, जो भी होता है, some laws or regulations have a direct effect on the financial statement, right? और अगर आप जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉलो नहीं कर रहा है, बराबर है, मालूम पड़ा, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉलो नहीं करेगा, लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करोगे, तो नॉन कॉम्प्लायंस जो भी होगा ना बेटा, नॉन कॉम्प्लायंस मतलब आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज एंड रेगुलेशंस, तो इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको, बराबर है। सो देखो, नॉन कॉम्प्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस मे रिजल्ट इन व्हाट, नॉन कॉम्प्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस मे रिजल्ट इन फाइन्स, पहली बात, ठीक है। अब अगर आप मानेगा ही नहीं लॉज और रेगुलेशंस को, मनमानी करेगा, बिंदास है, अपने लिए कोई लॉ होता है क्या, कुछ नहीं, ऐसा नहीं चलता है, राइट। So non-compliance with laws and regulations may result in what? फाइन लगेगा, लिटिगेशन, आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, केस फाइल होगा, राइट है, और जो भी अदर कंसिक्वेंसेस है, बराबर है, और अदर कंसिक्वेंसेस फॉर द एंटिटी दैट मे हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितना इंपैक्ट पड़ा है, क्या मटेरियल इफेक्ट हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, आपने अगर लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किया है तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, बराबर है। So non-compliance with laws and regulations, याद रखना, may result in what बेटा, fines, litigation और other consequences, बराबर है। तो याद रखो, मेन पॉइंट याद रखना बेटा, क्या इफेक्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन में सबसे पहला क्या है, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देगा, दिस वन, उसके हिसाब से आपको सब फॉलो करना है और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। सम लॉज और रेगुलेशंस का तो पूरा डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। और अगर आप ये सब फॉलो नहीं करेगा तो you have to pay the fine. Means non-compliance with laws and regulation may result in fines, litigation होगा, litigation मतलब मुकदमा चलेगा आपके ऊपर, केसेस होते हैं ना, चलते रहते हैं केसेस, लाइक दैट, और अदर कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होगा, राइट है, जो भी डिसाइडेड रहेगा, करेक्ट है, मालूम पड़ा। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था, क्या बेटा, इफेक्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, जिसमें मेन हेडिंग याद रखना, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, effect, direct effect on the financial statement, and non-compliance with laws and regulations, what? Yes, non-compliance may result in fines or litigations, याद रखना बच्चा, समझा। Third point is what? Responsibility. What बेटा? Responsibility of management for compliance with laws and regulations. रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। कॉमन सी बात है, मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वो चेक करेगा कि सब लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, राइट। मींस टू इंश्योर दैट एंटिटीज ऑपरेशंस, जो एंटिटी का ऑपरेशंस है, आर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ व्हाट, लॉज एंड रेगुलेशंस यार, इंक्लूडिंग कंप्लायंसेस, जो भी कंप्लायंस है फॉलो हो रहा है कि नहीं, एवरीथिंग, बराबर है, रिपोर्टेड, जो भी रिपोर्टेड अमाउंट्स है या फिर जो भी डिस्क्लोजर्स है इन एन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपका इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस है कि नहीं। तो ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहली बात तो आपको पता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, जो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, वो तो रहता ही है, ठीक है, बरोबर। और लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको फॉलो करना ना, अगर लॉज एंड रेगुलेशंस का कंसिडरेशन ध्यान में नहीं लेगा तो उसमें बहुत फ्रॉड और एरर के चांसेस होते ही है। एरर तो ठीक है, चलो अनइंटेंशनल है, बट फ्रॉड तो लोग कर ही सकते हैं ना आराम से। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे, टू इंश्योर दैट दी एंटिटीज ऑपरेशंस आर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद दी व्हाट, प्रोविजंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इंक्लूडिंग कंप्लायंसेस। कंप्लायंस होना जरूरी है बेटा, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा। अब मानेगा ही नहीं तो ऐसा नहीं होता ना, सब कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा, राइट। रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रूल्स, मतलब जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस है इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फॉलो होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। नॉर्मली याद रखो, हाउएवर द ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग नॉन कॉम्प्लायंस,
वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ी है नॉन कॉम्प्लायंस हुआ तो। नॉन कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस को फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना, सब कॉम्प्लायंस मानना, लॉज एंड रेगुलेशंस चल रहा है कि नहीं बराबर से लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, वो सब जिम्मेदारी किसकी है बेटा? वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। So auditor is not responsible for preventing non-compliance and cannot be expected to detect non-compliance with all laws and regulations. पहली बात कि auditor is not responsible for preventing non-compliance. Auditor is responsible किसके लिए होगा? Auditor is responsible for obtaining reasonable assurance. बराबर, रीजनेबल एश्योरेंस, उसको रीजनेबल एश्योरेंस मिलना चाहिए, भरोसा मिलना चाहिए कि भाई हाँ सब कुछ कंप्लाई हुआ है कि नहीं, सब लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, बराबर है। तो उसके लिए वो मेहनत करेगा, उसके लिए वो अपना सब कुछ फॉलो करेगा जो भी है प्रोसीजर्स, राइट है, कि रीजनेबल एश्योरेंस मिलना चाहिए उसको। ऑडिटर को क्या मिलना चाहिए बेटा? रीजनेबल एश्योरेंस, राइट, मालूम पड़ा? सो ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग व्हाट? रीजनेबल एश्योरेंस, right, that the financial statements are what? Free from material misstatement. मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मतलब आइटम ही ऐसा है जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा, डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सके, वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री फ्रॉम होना चाहिए। छोटे मोटे एरर तो हो जाते हैं लेकिन मटेरियल नहीं होना चाहिए। वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट कर सके, जिसका इफेक्ट होता ही है, बराबर, दैट इज व्हाट मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गया। ठीक है, रिलेवेंट, मालूम पड़ा कि नहीं? मटेरियल मतलब जो भी ऐसा मिसस्टेटमेंट है, पता है ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि ऐसा कोई अमाउंट, बड़ा अमाउंट या फिर ऐसा कोई भी आइटम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, डिसीजन मतलब यूजर्स के डिसीजन को अफेक्ट करेगा, मालूम पड़ा? सो दोज आर व्हाट? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होना चाहिए यार? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट यार। सो उसके लिए ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस। ये वर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वर्ड, रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस उसको लेना है। Got it? Clear? मालूम पड़ा? Objectives. Now, fifth point is what? Objectives. तो बेटा, the objective of the auditors are what? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या ऑब्टेन करेगा? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस हो रहा है कि नहीं, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हुआ है कि नहीं, फॉलो कर रहे हो कि नहीं, तो उससे रिलेटेड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या करेगा? ऑब्टेन करेगा। To perform specified audit procedure. क्या? To perform what? Specified audit procedure to help identify instances of non-compliance. कोई non-compliance हुआ है क्या, तो उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ताकि आइडेंटिफाई हो सके। और टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, व्हाट बेटा? टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू नॉन कॉम्प्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कॉम्प्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करेगा, टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू नॉन कॉम्प्लायंस। क्या नॉन कॉम्प्लायंस हुआ है या सस्पेक्टेड नॉन कॉम्प्लायंसेस क्या है, राइट है? तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है, मालूम पड़ा? टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू हेल्प आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस और रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू सच नॉन कॉम्प्लायंसेस और सस्पेक्टेड नॉन कॉम्प्लायंसेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट इज व्हाट? नेक्स्ट, नाउ सिक्स पॉइंट इज व्हाट? रिक्वायरमेंट्स। ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है, इसमें सब पॉइंट्स भी हैं। तो पहला सब पॉइंट है रिक्वायरमेंट में, ए, ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस में क्या है कि इन अकॉर्डेंस विद SA 315 ऑडिटर शैल ऑब्टेन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ, क्या? 315 के हिसाब से पूरा एंटिटी के एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा, कैसा कंट्रोल सिस्टम है, एवरीथिंग। सो लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कितना एप्लीकेबल है उस एंटिटी को, वो देखेगा, बराबर है? एंटिटी एंड द सेक्टर, इंडस्ट्री जो भी है, हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क, जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है एंटिटी को, वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, कॉम्प्लाई कर रहा है कि नहीं, कैसे कॉम्प्लाई कर रहा है, हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क, राइट, राइट। फिर ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट जो एविडेंस है, ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग कंप्लायंस, वो फॉलो करेगा कि भाई पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें कि रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना है। क्या करना बेटा? रिटन रिप्रेजेंटेशन, जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है, रिटन में सब लेना है कि ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को, वेयर एप्रोप्रिएट, TCWG को भी, बराबर है? मतलब
दोज चार्ज विद गवर्नेंस को कि रिटन रिप्रेजेंटेशन दो कि आपको, बराबर है, रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल नोन इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस या सस्पेक्टेड नॉन कॉम्प्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस वो आपने पूरा डिस्क्लोज किया है कि नहीं, क्या नॉन कॉम्प्लायंस हुआ था, सस्पेक्टेड नॉन कॉम्प्लायंस क्या है, आपने पूरा डिस्क्लोज करना है, ठीक है। वो रिटन रिप्रेजेंटेशन दो कि आपने मुझे ये सब बताया कि भाई आपको क्या नॉन कॉम्प्लायंस लगा, क्या सस्पेक्टेड नॉन कॉम्प्लायंस लगा, राइट है, जो अपना लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं होगा, बराबर है, हुज इफेक्ट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सब डिस्क्लोज करना है, उसके लिए रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट से या टीसीडब्ल्यूजी से, दोज चार्ज विद गवर्नमेंट से। और अगर नहीं होगा, अगर ऑडिटर को लग रहा है कि सब बराबर है तो फिर सवाल ही नहीं उठता, फिर वो ऑडिट प्रोसीजर क्यों परफॉर्म करेगा, है कि नहीं। अगर उसको लग रहा है कि सब ओके है तब तो सवाल ही नहीं उठता, फिर वो आगे अपना कंटिन्यू करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बोलता है बेटा, ये ए पॉइंट था, ए ऑडिट कंसिडरेशन ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। अभी बी पॉइंट में क्या बोल रहा है, ऑडिट प्रोसीजर व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड, ठीक है, क्या ऑडिट प्रोसीजर व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड, अगर उसको कुछ भी सस्पेक्ट आ रहा है या नॉन कंप्लायंस उसको आइडेंटिफाई हो रहा है तो वो क्या करेगा, प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ऑडिट प्रोसीजर करेगा, बराबर है। और वो मैटर डिस्कस करेगा किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, कि देखो ये ऐसा लॉज एंड रेगुलेशंस आपका फॉलो नहीं हुआ है, मालूम पड़ा, ओके, लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हुआ है, आपने नॉन कॉम्प्लायंस किया है, उसके लिए ऑडिटर लीगल एडवाइस भी ले सकता है, क्या बेटा, लीगल एडवाइस भी ले सकता है, राइट, मालूम पड़ा कि नहीं। एन ऑडिटर शैल इवेलुएट द इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस इन रिलेशन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट इंक्लूडिंग द ऑडिटर रिस्क असेसमेंट एंड द रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस। अभी उसका नॉन कॉम्प्लायंस है तो उसका इम्प्लीकेशंस भी होगा, बराबर है, ऑडिटर का असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट उसके हिसाब से क्या होगा, वेरी होगा, चेंज होगा, मालूम पड़ा। और मैनेजमेंट ने क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया था वो सब देखेगा ना, सब मैच करेगा और उसके हिसाब से वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, बराबर है कि नहीं। नॉन कॉम्प्लायंस है तो नॉर्मल सी बात है, रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट पे तो इफेक्ट होना ही है, जब वो अपना रिपोर्ट देगा, बराबर है, ट्रू एंड फेयर व्यू का जब रिपोर्ट देता है तो उसमें वो निगेटिव इंपैक्ट देगा, निगेटिव रिपोर्ट देगा, फिर क्वालिफाइड दे सकता है, बराबर है कि नहीं। तो इम्प्लीकेशंस भी है, ऑडिटर रिस्क असेसमेंट है, मालूम पड़ा कि नहीं, मैनेजमेंट के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से भी जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिला था उससे कंपेयर करेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा। अगर उसको मालूम पड़ता है, आइडेंटिफाई होता है कि भाई इधर नॉन कॉम्प्लायंस हुआ है, अब ऑडिटर को अगर नॉन कॉम्प्लायंस मालूम पड़ता है तो उसके लिए रिपोर्ट भी करना है उसको, सी पॉइंट में, रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कॉम्प्लायंस। तो पहला रिपोर्ट तो क्या करेगा, वो टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करेगा। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस मैटर्स इन्वॉल्विंग नॉन कॉम्प्लायंसेस, कौन कौन सा नॉन कॉम्प्लायंस हुआ है, लॉज रेगुलेशन क्या फॉलो नहीं हुआ है, रिपोर्टिंग नॉन कॉम्प्लायंस इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्टिंग नॉन कॉम्प्लायंस इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो ऑडिटर का रिपोर्ट होगा उसमें भी वो रिपोर्ट करेगा ही कि भाई नॉन कॉम्प्लायंस हुआ है, इधर लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हुआ है, बराबर है। तो वो अपना क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देगा, दे सकता है ना यार, कॉमन सी बात है, नॉन कॉम्प्लायंस है तो। और फिर वो रेगुलेटरी एंड जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है उसको भी रिपोर्ट करेगा, मालूम पड़ा कि यहाँ कॉम्प्लायंस नहीं हुआ है, नॉन कॉम्प्लायंस हुआ है, मतलब जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं हुआ है। और फाइनली डॉक्यूमेंटेशन रखेगा, देखो सब चीज का फाइनल पॉइंट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। इतना जो काम किया है, बराबर है, सब नॉन कॉम्प्लायंस सब देखा, उसने सस्पेक्टेड नॉन कॉम्प्लायंस किया, उसके लिए सब मेहनत किया रहेगा ना भाई, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन तो रखना ही पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन तो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट ऑडिटर, क्या बेटा, द ऑडिटर shall document identified or suspected non-compliance with laws and regulations and the result of discussion, जो भी result of discussion हुआ है with the management, where applicable those charged with governance and other outside party outside the entity, ठीक है। तो पूरा जो भी आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कॉम्प्लायंस है, राइट है, डिस्कशन विद मैनेजमेंट, डिस्कशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, बराबर है, या पार्टीज आउटसाइड द एंटिटी लाइक रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी, जो भी है, जो भी उसने काम किया, डिस्कशन किया, एवरीथिंग, सबका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, सबका डॉक्यूमेंटेशन रखना है भाई 230 के बेसिस में, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है। तो वो ऑडिटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उसका प्रूफ है, वो उसके काम का प्रूफ है कि उसने कितना काम किया, कितना मेहनत किया, इतना, बराबर है, सब कुछ किया, प्रोसीजर परफॉर्म किया, सबका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जो भी आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कॉम्प्लायंस हुआ है सबका डॉक्यूमेंटेशन।
डिस्कशन किया था मैनेजमेंट के साथ, दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, सबका डॉक्यूमेंटेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। दैट्स इट। क्लियर है, मालूम पड़ गया। तो ये होता है आपका क्या, दिस इज व्हाट 250 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 250, दैट इज द कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस in an audit of financial statements. Okay.